So today we are going to start what? Chapter electricity, grade 10, chapter electricity. So today is the first class of chapter electricity. सबसे पहले हम define करते हैं what is electricity, what is electricity is made up of. So what is electricity? Electricity is defined as the rate of flow of charge with respect to time in a particular direction, through a conductor. Okay, what is the basic definition of electricity? It is, and its symbol is capital I or small I, so I prefer this capital I. So rate of flow of charge, कहीं पे भी rate word आ जाए उसका meaning क्या है? What we need to apply? Rate means to divide. Flow of charge, किसको divide करना है? Charge को divide करना है with respect to किससे? Time से. तो ही हम क्या बोलेंगे? Through a conductor is called electric current or electricity. It's called electric current or just simply electricity. Hence, it is given by electric current. Electric current is equals to electric charge upon time interval in which the charge will flow. Symbol wise, I is equals to Q by T. Q, अगर अब आपसे पूछा जाए कि what is the SI unit? So SI unit of electric current will be, क्योंकि SQ होता है चार्ज, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, T होता है टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, so कूलम पर सेकेंड will be the SI unit. But since it is discovered by Ampere, so that's why SI unit is given as Ampere and symbol A. So actual में कूलम पर सेकेंड को बोला जाएगा MKS यूनिट जब आप 11th 12th के अंदर आ जाएंगे उस टाइम पे. So in general I की SI यूनिट आप क्या बोलेंगे? A एम्पियर. सिंबल इज कैपिटल A. SI यूनिट किसकी? एम्पियर की. ठीक है. सेकेंड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. 10th लेवल पे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जब आप 11th-12th लेवल पे होंगे उस टाइम मैं इसी चीज को बोलूंगा, इट इज नीदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. लेकिन अभी वो क्या होती है अभी उसको डिस्कस करने का अभी यहाँ पर मोटिव नहीं है. सो एसआई यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. जल्दी से थोड़ा बहुत मैं चार्ज के बारे में भी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं बेसिकली कि व्हाट इज चार्ज. चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच एनी मैटर और एनी सब्सटेंस कैन ईदर अट्रैक्ट और रिपेल द अनदर सब्सटेंस. यानी कि अगर एक कोई सब्सटेंस है ये ए, तो चार्ज अगर इसके अंदर चार्ज है तो चार्ज इसकी ए की वो प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिसके थ्रू या तो वो दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल कर सकता है. एंड इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल, एवरी मैटर. मैटर मींस एनीथिंग व्हिच हैज द सर्टेन मास एंड डेफिनाइट शेप, सर्टेन मास एंड सर्टेन वॉल्यूम. ठीक है. शेप मैंने गलत बोल दिया. व्हिच हैज डेफिनाइट मास एंड सर्टेन वॉल्यूम. जैसे एयर इन वॉल्यूम, एयर इन बैलून will be having the certain mass as well as certain volume. So कोई सी भी चीज हो जिसके पास मास और होगा मैटर, वो सभी चार्ज प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं. So charge is the basic property of each and every material due to which either it can attract or repel the another substance. Although आपके कोर्स के हिसाब से नहीं है चार्ज के बारे में, थोड़ी सी बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अच्छा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. मैंने लिख ही रखा है, symbol is capital C, Coulomb. Coulomb was the scientist, इसलिए उसी के नाम पर दिया गया है ऐसा यूनिट C. ठीक है. अच्छा, अब मान लीजिए तो ये हो गया चार्ज के बारे में. चार्जेस के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते. टाइप्स ऑफ चार्ज.
So based on the sign conventions, we can divide two types of charge, positive, negative, or nature wise we can divide again two like charge and unlike charges. Like charges and unlike charges. Like charges are those charges which are having the same nature, same behavior या same type. जैसे one of the type positive, negative. Positive types of charge में हमने क्या रख रखा है? For example, proton. Proton के charge को हमने assume कर लिया कि it is the charge of proton is considered to be positive. And similarly, all such materials which lose the electrons from their neutral state will become positive ions. So हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज का अनदर एग्जांपल क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्जेस के एग्जांपल चल रहे हैं ये यहाँ पर. तो प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन का सिंबल मैंने P+ लिख रखा है. ऑल पॉजिटिव आयंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg+2, calcium ion Ca+2, etc. All these in ionic form positive are called positive charges. Similarly, what are negative charges? तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको कंसीडर कर लिया गया क्या? नेगेटिव. इसलिए कंसीडर किया गया कि पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रिक करंट, जनरली हम जब बल्ब वगैरह इन सब की ये चीजें हुई तो इलेक्ट्रिक करंट को पहले ही पता था कि इलेक्ट्रिक करंट इस एक वायर में ए से बी फ्लो हो रही है. तो बोल दिया गया कि दिस इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. फाइनली पता चला कि नहीं, ये आई जो करंट है ये तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण है. और वो चार्जेस कौन थे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो. और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्चुअल में बी से ए की तरफ हो रहा था. तब सब लोग चक्कर में पड़ गए कि यार या तो आई की डायरेक्शन को चेंज करें, बी टू ए बोले. और हम आज तक आई के बेस पर तो बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारी स्टडी कर चुके हैं, तो उन सबके अंदर भी फिर डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ी. तो उन्होंने कहा कि लेट इट बी ना, केवल डायरेक्शन का ही तो फर्क पड़ रहा है. तो बोल दिया गया कि आई करंट की डायरेक्शन अगर ए से बी में है तो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. तो उन्होंने ये मान लिया कि आई को पॉजिटिव मान लिया, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे उनको नेगेटिव मान लिया. तो आगे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज. और फिर पता चला कि ए से बी के अंदर अगर आयंस फ्लो करवाने हो तो ए से बी की तरफ जो आयन फ्लो हो रहे थे वो पॉजिटिव हो रहे थे. तो इसलिए ये बोल दिया गया कि आई की डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस फ्लो होते हैं. तो ये प्रोटॉन और पॉजिटिव आयंस सभी को हमने कर कह दिया पॉजिटिव चार्जेस. और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और सभी नेगेटिव आयंस को बोल दिया क्या? नेगेटिव चार्जेस. सो ऑल नेगेटिव आयंस. ऑल नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा? जैसे देखिए O-2, N-3. इधर अगर और बोल दूं तो एल्यूमिनियम+3, ठीक है. और क्या हो जाएगा? F-, Cl-. तो ये जितने भी नाइट्रेट आयन है, NO3- एक्सेट्रा, ये सब किसका एग्जांपल्स है? नेगेटिव आयंस के. नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस. तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव. दूसरा क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस क्या होते हैं? Those charges which are having the similar type of charges. Similar type of charges, same charges, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो. तो ऐसे पेयर्स, तो जैसे मैंने एक बना दिया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का. तो दो चार्जेस अगर किसी सिस्टम में प्लेस हैं और उनके ऊपर जो भी चार्ज है, चार्ज का टाइप सिमिलर है, सेम है, तो उनको बोलेंगे लाइक चार्जेस. तो चार्जेस हैविंग द सिमिलर टाइप्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, आर कॉल्ड लाइक चार्जेस. या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि दोनों या तो नेगेटिव आयंस हो जाए या दोनों पॉजिटिव आयंस हो जाए, दो या दो से ज्यादा, तो सब क्या कहलाएंगे? लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर. सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. और अनलाइक का मतलब अपोजिट चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्जेस, हैविंग अपोजिट नेचर. अब अपोजिट नेचर का क्या मतलब हो गया? एक प्लस है तो दूसरा माइनस हो, या फिर एक माइनस है तो दूसरा प्लस हो. तो ऑलवेज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ऑलवेज अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा. तो देखिए साहब, यहां पर अभी हमने चार्ज को समझा. चार्ज के बाद हम थोड़ी सी उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं. तो फंडामेंटल
particles. So what are the fundamental particles? The electrons, protons and neutrons are together called fundamental particles. ठीक है, which constituent an atom. एक एटम को कौन मिलकर के बना रहा है? एटम, पहले डॉल्टन ने बोला, आपने 9th ग्रेड के अंदर पढ़ा था कि डॉल्टन ने बोला था कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल एट ऑल, तो दैट वाज कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल थिंग. लेकिन फिर पता चला कि एटम खुद कुछ चीजों से मिलकर के बना है, और वो कुछ चीजें कौन थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इसका मतलब कोई चीज जिनसे मिलकर के बनी उसमें ब्रेक हो सकती है. इसका मतलब तो एटम ब्रेक हो सकता था. किसमें ब्रेक हो सकता था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. और उसका स्ट्रक्चर फिर बाद में पता भी चला, है ना, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, कि बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर कौन रिजाइड करते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और इसके चारों तरफ जो होलो शेल्स होते हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं. तो ये आप लोगों ने देखा था. ये जो बीच का पार्ट होता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन रह रहे हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इनको टुगेदर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इनको टुगेदर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिला करके. और इसके जो बाहर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, इस जिस पाथ में वो घूमते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल. ठीक है, ऑलराइट. पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन वर्ड ही मिलकर के बना है न्यूट्रल से. इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज होता है इस पर जीरो. तो अगर मैं यहां पर लिख दूं चार्जेस, तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं. ये चार्ज का अगर अमाउंट पूछा जाए कितना होता है, तो इसको लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. प्रोटॉन पे पूछेंगे कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है इतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. और न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो होता है. ठीक है. इसी तरह से दूसरी चीज, यानी कि ये दो चीजें बता रहा हूं, एक चार्ज और एक मास, ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के. तो मास, सिंबल स्मॉल m. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg. और न्यूट्रॉन का भी मास ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg. क्लियरली 10⁻31 इज स्मॉलर देन -27. -31 छोटा होता है, -27 बड़ा होता है. सो हम क्या बोलेंगे? विच वन इज ग्रेटर? दिस वन. सो प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास कई गुना ज्यादा है. आप देख सकते हैं ये -31 है, उससे 10,000 टाइम्स ज्यादा नजर आ रहा होगा आपको. सो -27 या 10,000 बोल लो या 2,000 टाइम्स एक्चुअल करोगे तो 1,800 समथिंग आएगा कुछ. आप 2,000 मान सकते हो. 2,000 टाइम्स ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है. इसके कंपैरिजन में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल आएगा. इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये 9.1 और 1.66, 9.1 बड़ा 1.6 छोटा, ऐसे नहीं सोचना है. क्या सोचना है कि मास को, मास का ऑर्डर क्या है? 10⁻31, यानी कि 1 के नीचे 10⁻31, और यहाँ पे 1 के नीचे 10⁻27. समझने के लिए देखो, 1/10⁻, एक तो हो 5 और एक हो 1/10⁻2. तो 1/10⁻5 का आंसर आएगा 0.0001, और 10⁻2 का आंसर आएगा 0.01. क्लियरली ये नंबर बड़ा हुआ, यानी कि 1/10⁻2 का मतलब तो होता 10⁻², और 10⁻5 का मतलब होता, बट 1/10⁻5 का मतलब होता है 10⁻5. क्लियरली या तो ये तो आंसर देता 0.0001, ये था 0.01. क्लियरली ये इससे कई गुना ज्यादा बड़ा, यानी कि इसके कंपैरिजन में इसको तो जीरो या नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं. ठीक यही काम यहाँ है. ये 27 है, ये 31 है. इससे कितना, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? आप खुद सोचो. 10⁻27, 1/10⁻31,
और 1/10⁻27। देखो, यानी कि आप, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड करूं तो मान लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना बनेगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg अपॉन 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये माइनस जाएगा, ऊपर प्लस का बन जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 91/16.6 इंटू 10⁻31 प्लस 27। अब देखना भाई, इसको अप्रोक्सीमेशन में मैंने 90/16 ले दिया, सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए। -31 प्लस 27 -4, ये हो गया 16 5 जा 80, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा, इंटू 10⁻⁴। तो मान लीजिए 5.6 और 10⁻⁴ को नीचे लिखा तो 10⁻+4, तो ये आंसर कितना बना 0.00056। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 0.00056 टाइम्स ही है, यानी कि नेग्लिजिबल है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। खैर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थी, लेकिन ये दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर टुगेदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो ये चीज समझ में आ गई क्या? जल्दी बताइए। सो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के बाद लेट्स कम बैक टू द इलेक्ट्रिक करंट। हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है Q/T। याद रखें, रट लें, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Q/T और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर A। अब आपसे पूछा गया डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, या क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब भी आपको क्या है, डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। जब भी कहीं पे भी हम डिफाइन करते हैं कोई सी भी चीज, तो उससे रिलेटेड हमेशा क्या बनाते हैं, फॉर्मूला। तो 1 एम्पियर यूनिट से पहचानेंगे कि ये चीज क्या है। तो एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट होती है, करंट की। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है करंट का। तो पहले चेक करते हैं क्या करंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। यस, अवेलेबल है। क्या है? सिंस I is equals to V, since we know that, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे ताकि एक तमीज से लिखने वाला फॉर्मेट बने। Since we know that I is defined as I is equals to Q/T। अब जब आपको 1 की डिफाइन करनी हो तो फॉर्मूला लिखने के तुरंत बाद जो भी फॉर्मूले में क्वांटिटीज बचती हैं उन सबको पुट कर दो 1 along with their respective units। कैसे? When Q is equals to Q क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। So when Q is equals to 1 coulomb and T is equals to 1 second, then I will be is equals to 1 coulomb upon 1 second, और 1 coulomb upon 1 second को ही क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। तो अब इसको अगर वर्डिंग में डिफाइन करना हो तो इसको रीड करना आना चाहिए वर्डिंग में। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको रीड करने के लिए इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम बोलेंगे इफ Q is equals to 1 coulomb charge flows from one point to another in time 1 second, यानी कि T is equals to 1 second के अंदर अगर कोई 1 coulomb चार्ज फ्लो हो रहा हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या किसी कंडक्टर के अंदर, तो जो करंट प्रोड्यूस हुई उसी को बोला जाएगा 1 एम्पियर। सो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, द इलेक्ट्रिक करंट when 1 coulomb charge flows in 1 second through a conductor, then the produced electric current is said to be 1 ampere, or 1 ampere current is said to be produced when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. So when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then constituent बोले तो जिससे मिलकर के वो बनी, produced, then constituent or produced electric current is said to be
1 ampere current. So this is the definition, and that is the definition of 1 ampere current. समझ में आ गया? तो देखिए साहब, अब जब हम इनको डिफाइन कर चुके हैं तो अब इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। तो देखिए, चार्ज बेसिकली है क्या? तो चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए कि कॉपर वायर है, तो उसको मैं मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, यानी कि पतला मैग्नीफायर है, इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके आपको बता रहा हूँ इसी वायर को, है ना। तो मान लीजिए कॉपर वायर था, तो इसको मैग्नीफाई किया हमने, थोड़ा बड़ा व्यू बनाया, तो इसके अंदर कोई भी मेटल हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसमें पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Free electrons are those electrons which are bounded very loosely inside the atom in their outermost shell, और outermost shell को बोला जाता है क्या? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी अपने एटम को छोड़ करके चले जाने की हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आप बस ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की होती है, सो दैट दे कैन एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये वाले सब, है ना। हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are called the inert gases or noble gases. तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो साधु महात्मा बन जाए। क्या बन जाए? एक्वायर कर ले इन साधु महात्मा की जैसी पोजीशन। इनर्ट गैस, ना किसी से लेना ना किसी को देना, अपने हाल में मस्त रहना, ठीक है। तो ये सब बाबा जी बनना चाहते हैं। तो मेटल्स होते हैं जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स फालतू पड़े होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से कोई मिल जाए बस उनको, ऐसे नहीं हवा में नहीं फेंक देंगे, ठीक है, कि पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा। बस वो ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई मिल जाए और मैं अपने पास का इलेक्ट्रॉन उसको सरका दूं जल्दी से। तो जैसे ही मेटल को कोई नॉन मेटल नजर आता है वो तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन प्यार से उसको सरका देता है। जैसे Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो अब ये क्या चाहता है? ये एक्वायर करना चाहता है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो सोडियम चाहता है मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊं। उस नियॉन के जैसे बनने के लिए जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दुख दे रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है। पास में आया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है सब 17 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता है। अच्छा, ऑर्गन, ऑर्गन का होता है सब एटॉमिक नंबर 20 और इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2882, ठीक है, या आप सिंपली बोल दीजिए 2810, इस तरह से होती है। वैसे 2882 ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। नहीं 20 नहीं होता है, सॉरी 20 तो किसका होता है? Ca का होता है ना। 2882 ऑर्गन की होती है कितनी? 18, मैं गलत बोल गया, सॉरी। ऑर्गन की होती है 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 288। तो क्लोरीन क्या चाहता है कि या तो मैं 28 बन जाऊं या मैं बन जाऊं 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लूं, ठीक। इन दोनों में से कोई सी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर। अब अगर वो ये अटेंड करना चाहता है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इसको पूरे इधर उधर इतना भटकना पड़ेगा कि जो इसको मिल भी नहीं पाएगा। लेकिन यही इधर ये देखें 288, तो इसको दिखा कि यार एक इलेक्ट्रॉन, या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, तो भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगी, नियॉन की जैसे बन जाऊंगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लूं कहीं ना कहीं से, तो भी मैं ऑर्गन को पा जाऊंगा। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ज्यादा इजी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन को सर्च करना, रादर देन टू रिलीज 7 इलेक्ट्रॉन एंड टू सर्च 7 डिफरेंट थिंग्स व्हिच कैन एक्सेप्ट देयर एलिमेंट। तो हम क्या बोलते हैं, Na होता है मेटल, इसकी टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन देने की,
Na की टेंडेंसी है 281 इस 1 इलेक्ट्रॉन को देने की, और क्लोरीन है, इसका है एटॉमिक नंबर 287, इसकी एक इलेक्ट्रॉन लेने की। दोनों का काम आसान हो गया। सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन ने सोडियम को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसने कहा मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन ने कहा मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसने कहा ले ले। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आ गया। तो सोडियम से क्या खत्म हो गया? नेगेटिव चार्ज। जिसमें से नेगेटिविटी खत्म हो जाए, जिसमें से नेगेटिव चीज खत्म हो जाए, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव। इसने क्या ले लिया? नेगेटिव चीजें ले ली, तो ये क्या बन गया? Cl-। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो बेसिकली मुझे समझाना ये था कि व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिनकी टेंडेंसी रिलीज होने की होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? मेटल्स में। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी तो लेने की है, ना कि देने की। मेटल, सभी मेटल्स की, मैक्सिमम मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। दैट्स व्हाई they are having excess of free electrons, and that's why they conduct the electricity. Non-metals generally do not produce or do not conduct the electricity. तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वायर के अंदर, कॉपर वायर है तो ठीक। और ये जब सभी का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, मान लीजिए बी से ए की तरफ, तो हम बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रही होगी। So I is said to be flown in the direction from A to B if the free electrons are moving in the particular direction from B to A. अब किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो जो भी सिस्टम होगा वो किनसे मिलकर के बना हुआ है? चार्जेस। चार्जेस किस फॉर्मेट में है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेट में। तो कितने चार्जेस हो सकते हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन का तो मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर ऐसे कितने अप टू ऐसे हो सकते हैं। तो ध्यान से देखें तो इंटीजर फॉर्म में ही चल रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? n। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है हमारे पास Ne, और n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? 1 2 3 4 सो ऑन, एनी इंटीजर वैल्यू, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि एक नंबर है। कोई सिस्टम में ले लूं, एक घर बना दूं, एक बॉक्स बना दूं, और उसमें कहूं चार्ज डालो, तो चार्ज किस फॉर्म में डालना है आपको? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो मिनिमम कितने चार्ज डाल सकते हो? या तो 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहूं कि अब एक और डालो चार्ज, तो आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, तो आप कहोगे कि अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितना चार्ज हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। फिर आप कितना डाल सकते हो? एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर कितना डाल सकते हो? 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इन जनरल कितने डाल सकते हो? n इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इस टोटल पूरे इस बॉक्स के अंदर इन जनरल चार्ज क्या हो सकता है? Q इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू Ne। ये फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला अगर मैं आपसे सब्स्टिट्यूट कर दूं इस फॉर्मूले में, I इज इक्वल टू Q बाई T इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया N इंटू E अपॉन T, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 एम्पियर ऑफ, सॉरी 1 कूलम। आपसे पूछा 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं हम इजीली। हमको पता है Q चार्ज दे रखा है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी हमें पता होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन करते टाइम माइनस नहीं लगाते, माइनस सिर्फ उसके नेचर को शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन है। जब पहले से बोल रखा है इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया मान लीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन कैसे पहचानेंगे? यूनिट से। कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। तो हमने बोला यहाँ पे क्या दे रखा है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, इसका मतलब n हमें फाइंड करना है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता होता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को ही हम E बोल रहे हैं। 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को ही सिंबल क्या देखा है? E, और इसकी वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपसे पूछा ये है, गिवन ये है, हमें पता ये होता है,
और इनके अंदर Q, N और E में रिलेशन पता है, सिंस Q इज इक्वल टू N फॉर एनी सिस्टम, तो हमें N निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बाय E। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, होना भी चाहिए क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो एक नंबर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर की कोई यूनिट थोड़ी होती है, यूनिट कैंसिल होनी भी चाहिए थी, हो गई। तो ये कितना बच गया, अब 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाऊं तो प्लस का 19 अपॉन 1.6। ठीक है, इसको कैसे लिख दूं मैं, 1 मैंने 10 इससे ले लिया तो ये बच गया 10⁻18, है ना। ये 1 और 18 मिलके 19, तो 19 को ब्रेक कर दिया 1 और 18 में, और इस पॉइंट को हटा दूं तो ऊपर एक और 10 आएगा, तो वो 10 इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, 100। तो इसका मतलब मुझे अब किससे डिवाइड करना है, 100/16 इंटू 10⁻18। तो इसका अंदर अब आप इसको बस डिवाइड कर लीजिए, तो 9.16 जा 96, ठीक है, बचे 4, 16 2 जा 16 5 जा, so 9.25 into 10⁻18 electrons will be there in 1 coulomb of charge। तो अब आप इस चाहो तो इसको एज ए डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर ऑलवेज 9.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।